اب کی بار پورا پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریشنز منا رہا ہے، یعنی کہ 75 برس گزر گئے۔ بہت سے ادارے ایسے ہیں اس ملک میں ساتھیوں کہ جن کی عمر بھی پاکستان جتنی ہی ہے، یعنی جس شب پاکستان وجود میں آیا 14 اگست 1947، تو شاید یہ ادارے پاکستان سے بھی پہلے سے موجود تھے اور انیشلی انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر کا آغاز کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنے 75th برتھ ڈے منا رہے ہیں تو تھوڑا سا ذرا ان کے اندر بھی ہم کھڑکی کھول کے جھانک کے دیکھیں اور ان کی کہانی بھی جاننے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے ریڈیو پاکستان آپ کو معلوم ہے، ریلوے کا نظام موجود تھا، یعنی پاکستان ریلوے، ریڈیو پاکستان، بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹل لائف انشورنس کارپوریشن یہ ایک ادارہ ہے جو کہ تب سے ہے جب سے پاکستان ہے، اور اس کے سی ای او نعیم اختر صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ذرا کہانی اس ادارے کی بھی سنتے ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس ادارے کا کیا تعلق، کیا کہانی ہے، وہ بھی ہم نعیم صاحب سے جانیں گے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار ہیونگ می ان دی شو۔ اچھا جی، ہمیں ذرا تھوڑی سی اس ادارے کے بارے میں بتائیں کہ یہ ادارہ ہے کیا، اور یہ کہ مطلب یہ پاکستان کے ساتھ ہی ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی توثیق صاحب، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ ادارے ہمارے ایسے ہیں پاکستان کے جو جن کا بائی برتھ ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ وہ ادارے ہیں جو ایکچولی برٹش جو راج تھا اس وقت یہ سارے اسٹیبلش ہوئے تھے۔ اچھا، سو اٹ ایکچولی ڈیٹس بیک ٹو 1800۔ سو 1884 میں ہماری ایک سروس جو برٹش نے اس وقت شروع کی تھی، وہ پوسٹ آفس انشورنس فنڈ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا۔ اچھا، تو اس پوسٹ آفس انشورنس فنڈ میں جو بھی پوسٹ آفس کے امپلائیز اور جنرل پبلک کی ویلفیئر کے لیے ایک فنڈ بنایا گیا تھا، جس میں کنٹریبیوشن ہوتی تھی ان کی پینشنز کے لیے اور ان کی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے، یعنی انہی کی سیلری میں سے؟ ہاں جی، انہی کی سیلری میں سے ہوتی تھی اور گورنمنٹ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی تھی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو اور اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ پوسٹل لائف انشورنس کا بہت قریبی رشتہ ہے پوسٹ آفس کے ساتھ۔ ایکچولی اٹ واز اے پارٹ آف دا پوسٹ آفس سروس آل ٹوگیدر فرام 1800s۔ تو جو برٹش تھے وین دے یوز ٹو ایکچولی گو ٹو نیو پلیسز، جب وہ اپنا پورا ایک نظام جب بنا رہے تھے، تو ان کی ایک اسٹریٹجی میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہم جس بھی ریموٹ ایریا میں ہم جائیں گے وہاں پر پہلے ہم پوسٹ آفس کو اسٹیبلش کریں گے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا انہیں کہ ایک تو وہاں پہ کمیونیکیشن لائنس ہو جاتی تھی ڈیولپ، لوگوں کے کوئی چیز اس کے لیٹر وغیرہ جانے آنے یا سامان کی ترسیل وغیرہ کی بات ہوتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پوسٹ آفس جو ہے ان کے لیے ایک انٹیلیجنس کا بھی ایک ادارہ وہاں بنتا تھا، سو دیٹ دے نو دا پیپل اراؤنڈ، اس علاقے میں کون ہے اور کیسے ان کو پھر فردر ہم نے جو ہے اس کے اندر سے obviously they were actually established the whole rule. So post office جو ہے یعنی سب کانٹیننٹ میں سو تھاؤزنڈس کے حساب سے پھر انہوں نے اسٹیبلش کی۔ اچھا، اب اس وقت جو ہمارا ادارہ پاکستان پوسٹ ہے، جی ہاں جی، وہ اسی کی ایگزیکٹلی۔ سو فاسٹ فارورڈ فرام 1800 ٹو 1947، تو پارٹیشن کے ٹائم پہ ایک جو پورا پوسٹ آفس کا نظام تھا، ایک پاکستان پوسٹ بن گیا اور دوسرا انڈیا پوسٹ۔ اوکے، سو انڈیا پوسٹ از obviously از اے لارج آرگنائزیشن، ان کے سائز کے حساب سے، اس طرح پاکستان پوسٹ بھی وی ہیو 10,000 پوسٹ آفسز اراؤنڈ دا ہول کنٹری۔ اچھا، تو آپ کا جو انشورنس والا ایلیمنٹ ہے اس میں یہ اب کیا آج کل کیا کرتا ہے؟ جی بالکل، سو یہ انشورنس جو ہے یہ اسی کے پاکستان پوسٹ کے ساتھ ایک پارٹ اینڈ پارسل تھا، اور اسی کو جو ہے وہ ہم اس میں انشورنس اور سیونگس کے جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ شروع سے جو ہے 1800 سے 1947 آنورڈ جو ہے ہمارے ایک فنڈ جو ہے ہمارا پورا کریٹ ہو گیا، جو کہ جنرل پبلک جو ہے اس کا فنڈ ہے، اور اس میں ان کی سیونگس کی ان کے پلانز ہوتے ہیں، پینشن کے ان کے پلانز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے نہیں، مطلب سو انیشلی یہ سرکاری ملازمین کے لیے بنایا گیا تھا، بٹ دین اٹ واز اوپن اپ ٹو دا ہول جنرل پبلک۔ تو اب کوئی بھی جو ہے ہمارے جنرل پبلک میں وہ اس کو ہمارے جو کیا پروسیجر کیا ہے اس کا، تھوڑا بہت اگر آڈینس ابھی ہمیں دیکھ رہے تو وہ جاننا چاہے گی کہ کس طرح سے اس کو لیے جی، اس میں آپ ہمارے کسی بھی پوسٹ آفس میں ہمارے فیلڈ کے آفسز میں جو ہمارے ہوتے ہیں نمائندے، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے آپ کی کسی بھی فیوچر نیڈ کے لیے جو ہے آپ کوئی ویڈنگ ہے آپ کی ڈاٹر کی، یا ریٹائرمنٹ نیڈ یا کچھ بھی، وہ ایک سیونگ کا ایلیمنٹ جو اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وی ایز اے نیشن جو ہے ہمارے سیونگز ریٹ از ویری ویری لو ایکچولی۔ ہم لوگ ڈے ٹو ڈے، ویک ٹو ویک، منتھ ٹو منتھ رہنے والے ہیں۔ ہم لوگ 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن جو ایسی ضرورتیں ہیں جو آپ کی آنی ہیں، آپ کے بچے ہیں، انہوں نے ایجوکیشن جو ہے ان کو، آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ میں اچھی
प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उनको भेजूं, लेकिन क्या आपने उसकी फीस के लिए कुछ किया उसके लिए? तो ये हम लोग उस तरह के प्लान जो है सो जो पाकिस्तान पोस्ट है वहां जाके भी सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अब जरा हम आते हैं जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सैलरी स्लिप है, एग्जैक्टली वो इस वक्त आप के इदारे जी बिल्कुल का एक बहुत नादिर पोजीशन जी है। हाँ जी तो उसकी जरा मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम जरा तस्वीर दिखाएं और साथ ही हमें फिर नईम आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी, ये एक्चुअली जो हमारी जो पोस्ट ऑफिस जी जी इसमें आप देखेंगे कि ये 1948 की सैलरी स्लिप है, बिकॉज कायद-ए-आज़म हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है एज अ गवर्नर जनरल पाकिस्तान। तो इसी की कितने रुपए इनकी 10,000 उस वक्त 10,000 सम टका और रुपीस जो ना इसके अंदर वो ये से मेंशन किया कुछ सही पढ़ा भी नहीं जा रहा वैसे मुझसे तो। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में आसेंगे यहाँ पे इमेज से इमेज अच्छा। तो ये और इसके अंदर 6,000 की जो है वो टैक्स की रिडक्शन है। ओके। एंड देन 4,000 जो है वो इसमें जो इनकी जो टेक होम जो उन्होंने जो है सैलरी जो उसमें शो की हुई है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। और ये आपके इदारे के पास कैसे आई? ये हमारी पोजेशन में नहीं है, ये तो ये एक ट्रेजरी का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, यही मैं सोच रहा हूँ। ये हमने एक ट्रेजरी के जो है डॉक्यूमेंट वहाँ से हमने लिया। तो लेकिन इसके अंदर जो सबसे सिग्निफिकेंट बात जो हमारे लिए है वो ये है कि कायद-ए-आज़म की सैलरी स्लिप के अंदर पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड का जिक्र है इसके अंदर। ओके। सो दैट मीन्स कि हमारे हिस्टोरिकली एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दिस टू एक्चुअली टेल आवर कस्टमर्स दैट वी आर सच अ ओल्ड and most trustworthy institution of government of Pakistan. So ये जो है हमारे लिए जो है कि बहुत ही अच्छी एक वो चीज़ है जिसमें कि पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड भी शो होता है कायद-ए-आज़म की सैलरी स्लिप के अंदर। जी बिल्कुल हाँ जी। जैसे हम इदारों की बात करते हैं जब भी कि हमारे जितने भी पुराने इदारे हैं अभी तक इतना स्ट्रगल करें, इतना काम करें, आप लोगों की भी स्ट्रगल होगी इतना टाइम तक सरवाइव करना और उसके बाद सस्टेन करना। एंड देन जिस तरह आपने बताया कि पहले सिर्फ मुलाजमीन के लिए एक आप लोगों ने इंश्योरेंस रखी, उसके बाद उसको एक्सपेंड करना कि जनरल पब्लिक को भी उसकी रसाई हो। तो क्या चैलेंजेस थे, किस तरह आप आगे किस तरह लेकर चलना चाह रहे हैं, प्लान्स क्या हैं इसके? चैलेंजेस तो हिस्टोरिकली ज़ाहिर है काफ़ी सारे थे, बिकॉज हमारे पूरे सिस्टम जो हैं टू बी ऑनेस्ट वो सारे अभी वो ओल्ड फाइल का सिस्टम हमारा होता है, हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं सारे जो उसके जो हमारे इदारों के। तो हमारे लिए जो अब जो है वो आगे जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उसमें है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक्चुअली, वो हम कर रहे हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इन 2020 एक्चुअली दे टुक अ डिसीजन टू फॉर्म दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ कंपनी नाउ। इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान पोस्ट। अच्छा, तो ये कंपनी बनाकर हम इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फिर हम इसको लेके आए हैं। सो SSCP के अंडर जो है वो हम इसमें काम कर रहे हैं जैसे बाकी इंश्योरेंस कंपनी के जो रेगुलेशंस होते हैं। तो उसी के अंदर हमारे पास देखें स्पेस इतनी है फॉर द ग्रोथ, क्योंकि हमारी आई मीन वी कैन ऑलवेज से कि इकॉनमी जो है वो डाउन है या जैसे भी है, लेकिन द साइज ऑफ आवर इकॉनमी द पॉपुलेशन दैट वी हैव, तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है इसकी एक्चुअली ग्रोथ के लिए। अगर हम एक अच्छे प्लान जो कि गारंटीड हो, लोगों को पता हो कि यार मैं अगर इतने पैसे दूंगा 10 साल बाद मुझे इतने मिल जाएंगे, और हमारे वही प्लान है, हमारे बोनसेस होते हैं उसके अंदर, हमारे किसी स्टॉक एक्सचेंज इससे कोई नहीं है, उससे नहीं होता रिलेशनशिप कोई भी। तो अभी आप टेक्नोलॉजी के एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं? टेक्नोलॉजी हमने रिसेंटली एक्चुअली हमारे अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एक्सेस दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। पहले वो लोग जाते थे अपनी पॉलिसी की डिटेल लेने के लिए, लेकिन अब हमारी वेबसाइट पे जाकर अपनी पॉलिसी डिटेल देख सकते हैं, अपना प्रीमियम वाचर जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द दे विल बी एबल टू एक्चुअली पे देयर प्रीमियम फ्रॉम आवर वेबसाइट एज वेल ऑनलाइन। हाँ जी, इंटरेस्टिंग। अब देखिए कई दफ़ा हमें अंदाज़ा नहीं होता नईम साहब कि किस तरह से गवर्नमेंट के कौन से इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कई बार उन चीज़ों के बारे में गुजर जाते हैं और सोचते भी नहीं। पाकिस्तान पोस्ट है, उसके आगे से कितनी बार मैं गुजरा हूँगा, लेकिन नहीं मालूम कि अंदर उसकी क्या बैक एंड के ऊपर कितना कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। सो आप जैसे मेहमानों की तशरीफ आवरी से हमें ये फायदा जरूर होता है कि बहुत सी नई चीजें हमें पता चल रही होती हैं। एक्चुअली जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे उनका एक जो डिलेमा हमारा ये है कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस जो है ना वो है काफी कम है, इवन ऑन द कमर्शियल साइड एज वेल। एग्जैक्टली। तो उसको जो है हम लोग ज़ाहिर उसके भी हमें थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी बना है। सरकारी इदारा है तो सरकारी इदारे में तो अब मतलब सरकारी इदारे में तो वो फाइलें होंगी और एक बुजुर्ग बैठे होंगे ऐनक लगा के और अभी तक लेजरों पे काम हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से गवर्नमेंट
के इदारे जो है वो मेरा ख्याल है कई बार तो मैं देखता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, डिजिटाइज हो चुके हैं और ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। सो लेकिन वो एक आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि अच्छा सरकार, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इवन इंडिया में भी यही कॉन्सेप्ट है, बांग्लादेश आप चले जाए, दूसरे ममालिक में कि अच्छा ये गवर्नमेंट का इदारा है तो ये स्लो भी होगा, इसमें रेड टेप भी होगी, इसमें काम देर से होगा, है ना, फाइलों में पहिए लुआने पहनेंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है जी, वो अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक अभी भी प्रवेल तो करती हैं, क्योंकि इसको सिस्टम को चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि बिकॉज ये इंटरनेट की जो रेवोल्यूशन आई है, टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन इज़ ग्रोइंग यू नो एट सच अ फास्ट पेस कि हम हमारे जैसे इदारे अगर उसको 10% ये अडॉप्ट कर लें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सर आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, बाज़ औक़ात पता नहीं होती हो, जिस तरह से अभी इस इंश्योरेंस का आई एम श्योर जैसे हमें भी फर्स्ट टाइम ही बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, ऑडियंस को भी पता चल रही होंगी, तो अभी आपने इन अपॉर्चुनिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए अभी आप लोग कोई अवेयरनेस का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी एक कैंपेन इवन 14 अगस्त पे भी हम लोग उस पर शुरू कर रहे हैं। हमारे कंपनी का एक सॉन्ग हमने डेवलप किया अराउंड दिस होल थिंग, उसकी एक वीडियो जो है हमें लॉन्च कर रहे हैं उसको भी, सो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले और उनका ट्रस्ट जो है उनका वापस आए जो गवर्नमेंट के इदारों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जनरल पब्लिक यही समझती है कि नहीं यार प्राइवेट के पास जाना बेहतर है, लेकिन व्हाट आई कैन से इज़ दैट यस कुछ सर्विस लेवल कहीं ना कहीं शायद अभी कंप्रोमाइज़ होता हो, लेकिन जो गवर्नमेंट की गारंटी जो है उससे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एक्चुअली। सो द गवर्नमेंट के जो अदारे हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ मनी, जो आपके पैसे हैं, जैसे हमारा नेशनल सेविंग्स है, उसमें लोगों को ट्रबल्स कुछ हो सकती है, लेकिन ये कि यू नो द अमाउंट ऑफ गारंटीड मनी दे एक्चुअली मेक। और हमारे बुजुर्ग खवातीन हज़रात उनसे आप जाके कहें तो वो कहेंगे नहीं बेशक मुझे थोड़ा प्राउड नेशनल सेविंग्स एक बहुत ट्रस्ट लेवल है कि जब ये हुकूमत आपके पैसे लेके भागेगी नहीं, वो आप उनको 100 कहें कि नहीं फलाना बैंक जो है वो तो बड़ा जबरदस्त है, नहीं, तो वो एक जो ट्रस्ट लेवल लफ्ज़ हुकूमत के साथ आता है वो तो नेचुरल है किसी भी सोसाइटी के। हमारे लिए सिर्फ ये चैलेंज है कि इस ट्रस्ट के साथ हमें सर्विस लेवल के ऊपर करना है। एग्जैक्टली, इफ वी कैन प्रोवाइड द बेटर सर्विस टू द जनरल पब्लिक एंड वी हैव द ट्रस्ट, यू नो, फिर हमारे गवर्नमेंट के इदारे ही फ्लरिश कर सकते हैं, लोग खुद ब खुद आएंगे, आ जाएंगे, बिकॉज़ दैट्स नईम साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम, और बड़ा एक डिफरेंट सी कन्वर्सेशन आपसे रही, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सैलरी स्लिप है उसको भी हमने देखा, उसके पीछे भी बहुत एग्जैक्टली। सो गुड लक। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि मैं जब यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले अपने लोगों को बताया कि मैं इसमें आ रहा हूँ, आई वाज रियली सरप्राइज कि आपकी इतनी फॉलोइंग है, यानी नॉट हेयर, यानी यू नो इंग्लैंड में, दूसरे मुल्कों में, उन्होंने कहा यार दिस इज़ द प्रोग्राम दैट वी रियली एंजॉय वाचिंग। Thank you because so with much. all the noise of the morning and the evening talk shows and all that, this is something that, you know, we really enjoy. We see that something is rising. So thank you very much for doing that service. बहुत बहुत शुक्रिया आपको, जिसने हमारी तारीफें की थी उन सबको आपने आप कॉल कर दिया, से शुक्रिया भी किया। ऑल द बेस्ट नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबीर और मैं अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आने वाले दिनों में आप जैसे भी जश्न आज़ादी बना रहे हैं उसकी वीडियो या तस्वीर हमें WhatsApp पे आप जरूर भेजें ताकि हम प्रोग्राम में शामिल करें, मिलके हमने सेलिब्रेट करनी है। ऐसे नहीं कि हम स्टूडियो में सेलिब्रेट कर रहे होते और आप हमारे साथ दे रहे होते हैं। आप जिस तरह अपने घर में, अपने इलाकों में सेलिब्रेट करें जश्न आज़ादी, आपके क्या प्लान्स हैं वो भी आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर शेयर कर सकते हैं और हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चीज़ें हमारे साथ शेयर करते रहें साथ साथ, ताकि हम भी आपको सबको दिखाते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।